Honorable Member, Honorable Madam Speaker. Honorable Members, I cordially welcome you all to this special sitting of the Youth Parliament. I hope this session will be a fruitful one as we have set out to deliberate the important matters concerning the nation. Today's first agenda is oath taking. Secretary General, please. Mr. B.O.P.G. to stand elected for Hyderabad constituency of Telangana will now take oath of affirmation. Mr. B.O.P.G. please. Sir, do you want to take oath or affirmation? In which language would you like to take the oath? ఇక్కడ చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన భారత రాజ్యమై నాకు నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయత ఉంది. నేను భారతదేశ సర్వాధికారం మరియు సమగ్రతను కాపాడుకుంటాను మరియు నేను నిర్వహించే బాధ్యతను నమ్మకంగా నిర్వహిస్తాను. Ms. Archil Sahu, stand elected for Varanasi constituency of Uttar Pradesh will now take oath of affirmation. Ms. Archil, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? In which language would you like to take the oath? अहं कौर्मं जनसदस्य निर्वाचित सन ईश्वरस्य नाम्ना शपथं करोमि यत् अचि करिष्यामि इति भारतस्य सार्वभौमत्वम् अखण्डता च धरिष्यामि यस्मिन् कर्तव्ये प्रविष्टो प्रवृत्ति अस्मि तत् निष्ठया निर्वहिष्यामि इति विधिना स्थापिता भारतस्य संविधाने यथार्थ विश्वास निष्ठा च धार्यते इति। Honorable members, as we are meeting after an interval of 2 months, it is my sad demand to inform the House that on 7 September 2024, a plane crash crashed in Amritsar district of Punjab. At least 45 people died, including the pilot and the crew members, and others are left seriously injured in this horrifying case. India is struck silent by the news of loss of many precious lives. On the behalf of the entire House, I would like to pay the heartfelt condolences to the departed souls and their bereaved families. May their souls. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि हमारे देश में एक विमान दुर्घटना के दौरान हमने कई जीवन खो दिए और इस दुर्घटना के चलती हुई बर्बादी का मुझे बड़ा खेद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। महोदया, यह हादसा हमें ये दिखलाता है कि हमें हवाई सुरक्षा के मामले में और भी सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसाओं को रोका जा सके। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों के साथ हैं और हम इस दुखद घड़ी में एक दूसरे के साथ स्थिर रहने का प्रयास करेंगे।
आज वो सभी लोग जो इस दुर्घटना में मारे गए, मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। I rise to pay tribute to all those people who lost their lives in Amritsar train tragedy, which took place on 7 September 2024. This devastating incident has left our nation in shock, claiming at least 45 deaths and leaving other passengers badly injured. Each life held unique dreams and connections, leaving an unfillable void. Let this tragedy remind us of the importance of safety and unity. May the memories of those lost inspire a collective commitment to prevent future tragedies. Our thoughts and prayers go out to all affected by this heart-rending event. May their souls rest in peace. The House may stand in silence for a while to express our deep condolence in David Shivani. Secretary convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Now, I request Honorable Prime Minister to introduce new ministers to the House. Honorable Speaker Madam, I have immense pleasure in introducing to you and through you to the whole House, my colleagues and the new ministers. Ms. Shivangi, Minister of Panchayati Raj. Mr. Harshil Sahu, Minister of Civil Aviation. Now, the question all starts. Question number 101, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Question number 1, Mr. Nomin. माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज से मर रहा किसान सरकार नहीं दे रही था और फिर भी शासक दल कह रहा जय जवान जय किसान। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्या केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए कोई मुआवजा प्रदान कर रही है? यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सुश्री जोशना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वस्तुओं और मानदंड के अनुसार सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि सहित सभी अधिसूचित आपदाओं के होने पर आवश्यक राहत प्रदान करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का ही है, जिसके लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के रूप में धन उपलब्ध है। मैं विपक्ष को बताना चाहूंगी कि 2018-19 से 2022-23 के मध्य हुए सभी अधिसूचित आपदाओं के लिए राज्यों को 45,654.76 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। एनी सप्लीमेंट्री? यस मिस्टर गर्ग। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है। एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है। पसलियां से लग रही है आंखें, खेत अभी भी बंजर है। Will the Minister of Agriculture and Farmer Welfare be pleased to state? Government promised to double the real income of the farmers and for that the production prices had to increase at the rate of over 10%, but they went up only by 2.5%. What steps has been taken to ensure fair pricing of agriculture products considering the fluctuation in market prices that affect farmers' income? Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Ms. Jyotsna. Honorable Speaker Madam, for the kind information of wise opponent, I want to say that our ministry has implemented various measures to ensure the fair pricing of goods and mitigates the impact of market price fluctuation on farmers' income, including implementation of export and import policies, market intelligence, direct market access to farmers, use of electronic mandis, soil health cards, Kisan Day, per crop, food crop has ensured that farmers receive fair and remunerative price for their products and reducing the vulnerability to the market price fluctuation and safeguarding their
चाहती हूँ कि भारतीय किसान की औसत आय 2012-13 में 6,426 से बढ़कर 2018-19 में 10,218 प्रतिमाह हो चुकी है। Question number 102, Ministry of Education. Question number 1, Mr. Aradhya Tiwari. माननीय अध्यक्ष महोदया या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्र भाषाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है कि क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्र भाषाओं पर बच्चों को पुस्तकों व शिक्षकों की उपलब्धताओं के लिए किसी नई नीति का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध पर सरकार ब्यौरा दे। Minister of Education, Ms. Namrata Nath. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जन्म से ही हम मातृभाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं और सारे संस्कार एवं व्यवहार हम इसी के द्वारा पाते हैं। मातृभाषा हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि इससे बच्चों में भाषा से जुड़ी हुई चीज का मतलब समझने का गुण धीरे धीरे उत्पन्न हो, ताकि उनकी याददाश्त, कल्पना चित्र और पुराने अनुभव को जोड़ने की क्षमता विकसित हो सके। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT को क्षेत्रीय भाषा संस्थान विश्वविद्यालय स्तर में प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NMT को केंद्रीय भारत संस्थान CIIL मैसूर के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं विपक्ष को बताना चाहूंगी कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग से विद्यार्थी अंग्रेजी में पिछड़ेगा नहीं, बल्कि वह न केवल विषय को बेहतर से समझ पाएगा, अपितु हमारी विविधता में एकता की गौरवशील परंपरा, जिसे आज भी विश्व में समता की दृष्टि से देखा जाता है। Any supplementaries? Yes, Mr. Nisha. In Parliament, we strive to ensure every child's future is bright. The path may differ, our goal is same. To nurture your mind and ignite the flame. Honorable Speaker Madam, whether the government proposes to increase expenditure on education to provide boosts to new jobs as teachers and great supply of professional and skilled workers. And if so, the detail thereof and characteristics being taken by allowing the funds for various schemes. Minister of Education, Ms. Namrata Nath. Honorable Speaker Madam, the NEP 2020 envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society by providing higher education to all and thereby making India a global knowledge superpower. The NEP 2020 is sustainable increase in public investment by both the central government and all the state governments. Question number 103, Ministry of Finance. Question number 1, Mr. Mehul Biswas. महंगाई तो आसमान छूने लगी है, आज खून पसीना ने दम तोड़ा है, नींद में कड़ी दुखी तपन फिर भी रोटी नहीं कैसा रोड़ा है। Honorable Speaker Madam, as there stand up amount of essential commodities and food products, especially pulses, milk, wheat, tomato, etc. throughout the last 2 years. So I would request to the Minister of Finance be pleased to state that what are the various reasons for the surge in the food prices, whether the government has taken steps to control the price rise. If so, please share the details. वित्त मंत्री जी श्री शेख रेहान. Honorable Speaker Madam, I would like to state that the price of essential items get affected by several factors such as mismatch in demand, seasonality, rise in international price. Agri-historical commodities are spiked because of monsoon rain. The increase in the price of tomato in July 2023 is due to crop seasonality. The increase in the price of arhar
due to less production because of the monsoon rain. To protect the vulnerable section, the government is implementing Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana to ensure food and security nutrients. It covers around 1 year to take this goal. आखिर में मुझे यही कहना चाहूंगा, सच को छुपाया गया, अफवाह उड़ाया गया, जो बताना था उसे बताया नहीं जाता। Any supplementaries? Yes, Miss Mehro. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वित्त मंत्री जी आपको बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का आटा, चावल, दूध आदि जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ पर लगाए गए जीएसटी को वापस लाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और सरकार इन संगठनों पर क्या कोई कदम उठा रही है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर शेख रेहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विद्वान सांसदों को यह बताना चाहूंगा कि दाल, चावल, आटा जैसी निर्देशित वस्तुओं पर 5% की दर से रियायत जीएसटी लगाई जाती है प्री पैक रूप से बेचने पर। खुले रूप से इस पर कोई जीएसटी नहीं लगाते हैं। दूध और पैस्चुरिकृत दूध इससे पूर्ण प्रामुख्य है। आखिरी में महोदय यही कहना चाहूंगा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पता नहीं पता किस चेहरे का जवाब दूं। Question number 104, Ministry of Sports and Youth Affairs. Question number 1, Mr. Rudra. युवा शक्ति है, साहस है, समृद्धि है, युवा प्रेरणा है, लक्ष्य सिद्धि है। मेरा सिंधु वीर रवि जैसे युवा रुझान उस देश की होते पूरी विश्व में प्रसिद्धि है। Honorable Speaker Madam, will the Minister of Youth Affairs and Sports be pleased to state that whether the government proposes youth belonging to poor families of rural areas to sports across the country? If so, where is the details of? Mr. Rahul Sinha, Minister of Sports and Youth Affairs. Honorable Speaker Madam, I would like to inform the Vice Opposition that the Khelo India National Program has been launched with the aim to strengthen the entire ecosystem and to promote the twin objectives of mass participation and to promote excellence in sports across the country. The Khelo India program, the Khelo India scheme mainly focuses on the broad basing of sports across the country among the youth, including the youth belonging to the poor families of the rural areas. Any supplementaries? Yes, Mr. Ayush. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं युवा मामले एवं खेल मंत्री से आप पूछना चाहूंगा, क्या खेल क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो उसका तत्संबंधित ब्यौरा बताएं। युवा एवं खेल मंत्री श्री राहुल सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहूंगा कि खेल क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो पर्सनल ट्रेनर उपलब्ध कराना हो या किसी भी खेल क्षेत्र में विशेषज्ञ की नियुक्ति कराना हो। Question number 105, Ministry of Rural and Employment. Question number 1, Miss Yoshita. पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, और ये जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वह कुर्सी पर मुस्कुराए बैठे हैं। आज हिंदुस्तान में हर जगह हर युवा एक ही मांग कर रहा है और वह है रोजगार, जिसकी सरकार को परवाह भी नहीं है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टैंड अप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमारे युवा को मिलना था वो मिला ही नहीं। मैं अभिभाषण में डाला है स्टैंड अप इंडिया। अरे पहले क्या सोए हुए थे, फिर कहते खेलो इंडिया। पहले क्या खेलते नहीं थे, अब कौन सा खेल खेलते हैं समझ नहीं आ रहा, जो देश ने पहले कभी खेला ही नहीं। फिर कह रहे फिट इंडिया, वाह मुबारक हो तुम्हारा फिट इंडिया। या युवा को रोजगार नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे, तो फिट इंडिया की बात करते हो। बहुत ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास, बहुत ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास। देखो देखो बेरोजगार खेल रहे स्मार्टफोन पर ताश। महोदया, सरकार ने अगर युवा को कुछ दिया है तो वो है केवल रामी 3 पट्टी और ड्रीम 11, और यह सरकार ग्रामीण बच्चों को बदलने की बात करती है। महोदया, मनरेगा का बजट 2003 से 2024 के लिए 60,000 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष 34% कट ऑफ
कटौती कर दी गई है। महोदया, मैं एवं इस देश का हर एक नागरिक यह जानना चाहेगा कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर कब ध्यान देगी, कब उद्योगपतियों के साथ साथ गरीबों का ख्याल करेगी। धन्यवाद महोदया। सुश्री युक्ति ठाकुर, श्रमिक एवं रोजगार मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष की जानकारी के लिए यह बता दूं कि हमारी सरकार सत्ते में पूर्ण बहुमत से आई है, जिससे यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि जनता को हम पर, हमारे फैसलों पर, हमारे नीतियों पर पूर्ण तरीके से विश्वास है। और बात अगर बेरोजगारी की ही हो तो उसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय घटना शामिल है, जैसे कोविड-19, श्रीलंका का गृह युद्ध, यूक्रेन रूस का युद्ध महोदय, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था और इसका प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा था। उसके बावजूद भी भारत की स्थिति की तुलना बाकी यूरोपियन देशों से की जाए तो हमारा भारत फिर भी बेहतर है। महोदया, हमारी सरकार ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं लाई हैं। हमारी सरकार ने हाल ही में लाया विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसके तहत हमारी सरकार द्वारा बेरोजगारों को 6 दिवसीय ट्रेनिंग व 10,000 से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा महोदय, हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया स्कीम चलाया। इसके तहत भारत के अंदर अधिक से अधिक सामानों का उत्पादन हो रहा है और अधिक से अधिक बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है। एक ग्रामीण योजना महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम योजना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है, परंतु अब इस ग्रामीण योजना को हम शहरों में भी लागू कर रहे हैं ताकि शहरी बेरोजगारों को भी इससे लाभ मिल सके। महोदय, पिछले 3 वर्षों से इतने आर्थिक संकट के बावजूद भी हमारे भारत का स्तर बेरोजगारी की दर पर स्थिर है और आने वाले 10 वर्षों में यह हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इस दर को 50% कम कर दिया जाएगा। महोदय, मैं और मेरी सरकार यहाँ बैठे विपक्षी व इस सदन को यह आश्वस्त करती है कि कुछ ही सालों में भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और भारत में रोजगार ही रोजगार होगा। धन्यवाद महोदय। Now the question hour is over and no more supplementary. Honorable Speaker, a serious breach of privilege has been committed by the member of civil society, few news channels and the newspaper Mumbai while commenting on the draft of land acquisition bill 2023 approved by Parliamentary Standing Committee. All is attributed to dishonest motives and expressed their doubt about the integrity of the whole political class and all honorable member of Parliament. So I kindly request you to allow me to raise this important issue of breach of privilege under the Parliamentary Act 188. Mr. Yash, have you given me the notice of it earlier? You may give due notice and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like that. Yes, I have already given the notice over at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know about my decision. Now, it's the time for the paper to be laid on the table. Minister of Consumer Affairs, Ms. Mahi Dongre. अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 105 के ऊपर 1 के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखी। Secretary General to report the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Madam Speaker, I have to report the following message received from the upper chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of values of procedure and conduct of business in Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of New Press and Periodical Bill 2023 as it was held on 8th of August 2023. Secretary General to lay on the table a copy of appropriation of New Press and Illustration Periodical Bill 2023. Madam Speaker, I lay on the table a copy of New Press and Illustration Bill 2023 as it was passed by the upper chamber. अब
अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सुश्री शैली सोनी अपने मुद्दे पर मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षण करें। Honorable Speaker Madam, I want to draw the attention of Social Justice and Empowerment Minister regarding increasing number of drug users in India. महोदया, हमारे देश में ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। हानिकारक दवाइयों के सेवन से हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस साजिश के पीछे हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। देखकर हमारा बुजुर्ग रहा है, देखकर हमारा बुजुर्ग रहा है, देश के नौजवान को आज नशा तो रहा है। महोदय, 13% ड्रग अब्यूज विक्टिम्स की तो उम्र 20 साल से भी कम है। 9 out of 10 people with this drug addiction using this substances before their 18. हमारी युवा पीढ़ी, हमारी यूथ जिसे हम भारत का भविष्य कहते हैं, आज वो नशे की चपेट में नशा कर रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हमारे देश की क्या हालत हो सकती है? और हो सकती नहीं महोदय, निश्चित रूप से हो ही जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। महोदय, भारत में 10,000 सुसाइड तो ड्रग और अल्कोहल के एडिक्शन के कारण ही हो रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है? उनसे बड़े बड़े वादे किए, सरकार बनाई, फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। महोदय, हमारे देश में ड्रग सप्लाई के बहुत नेटवर्क है और इन नशीली दवाओं के व्यापार के पीछे ड्रग माफिया, ड्रग डीलर्स और हमारी प्यारी बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे लिए राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण भी क्यों जाता है कि ये भी कभी सरकार जाता है। स्थान ग्रहण करिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, बैठिए। और इन्हें कई राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण भी है, तभी तो ये लोग आज बिना किसी डर के यहाँ सीना चौड़ा करके यही घूम रहे हैं। महोदया, अगर हमारी सरकार इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करती, इस अंडरवर्ल्ड के गेम को खत्म क्यों नहीं करती? क्या हमारी सरकार डर गई है? जी नहीं, मैं बताती हूँ, यहाँ तहजीब बिकते हैं या फरमान बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकते हैं या फरमान बिकते हैं। अरे जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ लोगों के ईमान तक ये है। शहर की जरूरतों की नीति में तलाशी, ये और अपने ईमान। हम फिर से कह रहे हैं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें, विपक्ष को अपना मुद्दा रखने दीजिए। हमारी सरकार को सिर्फ अपने आप से मतलब है, सिर्फ पैसों से मतलब है, इन्हें लोगों का दुख दिखाई ही नहीं देता। हमारी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, राष्ट्र हो चुकी है, इन्हें लोगों से कोई मतलब ही नहीं, इन्हें लोगों का दुख दिखाई ही नहीं देता। राजनीति के चाणक्य भी आज चांदी लूट रहे हैं, जो सब जगह फेल हुए आज राजनीति को लूट रहे हैं। मिस्टर अमन कुमार पांडे, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि नशीली दवाओं के व्यापार की वजह से भारत की युवाओं की जिंदगियां कितनी खराब होती है, और अब मुझे बताते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि इन दवाओं के व्यापारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। महोदय, अगर सच बताओ तो इन सारी समस्याओं की जड़ हमारी सत्ता पर बैठी सरकार ही है, जिसकी लापरवाही ने इस समस्या को एक घातक रूप दे दिया और इस सरकार की अक्षमता ने ही इन व्यापारों को एक सहायक हाथ प्रदान किया। और हाँ, मैं ये भूल क्यों जा रहा हूं कि आखिर सरकार इन मामलों में लापरवाही क्यों न दिखे। आखिर इन व्यापारों से आने वाली आय से अपनी तिजोरियां भी तो भरनी है, और आखिर ये तिजोरियां भरे बिचूंगा। आखिर सरकार है, सत्ता में आई है, और सरकार का सत्ता में आने के बाद अपनी तिजोरियां ही ना भरना, आखिर ये कहां की बात हुई। महोदय, सच बताऊं तो ये सरकार नई नई नीतियां तो ले आती है, पर कभी भी इन नीतियों पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाती, और करेगी भी कैसे? इनका ध्यान पैसों पे हटे तब तो करेगी। महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का युवा भारत की जान, भारत की शान है, भारत का अभिमान है, और फिर भी सरकार का भारत के युवा पे कोई ध्यान नहीं। भारत का भविष्य है भारत के युवा, और अगर भारत का युवा ही नहीं रहेगा तो भारत का भविष्य किस काम है? और आप मुझे ये बताइए कि अगर भारत का भविष्य ही नहीं रहेगा तो क्यों बैठे हैं? महोदय, सच बताऊं तो
अगर सरकार इसी तरह से गैर जिम्मेदार रही और अगर इन मामलों में अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम अपने भारत के उज्जवल भविष्य को बड़ी आसानी से खो देंगे। धन्यवाद। सुश्री सुहाना, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान जनों की जानकारी के लिए बता दूंगी आपकी चर्चा में जनता को पर चुनाव लड़ता है, लेकिन विपक्ष सोचता है कि हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मैं उन्हें ये बता दूं कि हमें हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी की चिंता है। हम इसके लिए काम करते आए हैं, काम कर रहे तक करते रहेंगे। मैम, our government has 2 flagship initiatives to check the drug abuse in the country. The Body and the Drug Abuse Protection Officers (DAPOs) programs are aimed at identifying vulnerable adolescents to prevent them falling into the trap of drugs. माननीय, बड़ी प्रोग्राम के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 9.51 लाख संगठित किए गए हैं। मैं दोहराती हूँ, 9.51 लाख संगठित किए गए हैं। And more than 43.5 lakh students has been enrolled as buddies. माननीय, इसके अलावा धारा 27 के तहत नशीली दवा का सेवन एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 10,000 का जुर्माना तथा 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। माननीय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 89,000 से अधिक फुटबॉल मैदान वाले आकारों के क्षेत्रों में अफीम और भांग की खेती को नष्ट किया गया है। माननीय, एनसीबी ने यह भी कहा है कि पिछले 3 वर्षों में देश भर में 35,000 एकड़ ठोस की खेती तथा 82,000 एकड़ भांग की खेती को भी नष्ट किया गया है। और आप कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे जागिए, अपने आस पास देखिए, सरकार तो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही है। और जहाँ तक बात है ड्रग माफिया की, इन्हें पकड़वा अगर इतनी ही निष्ठा से अपना काम कर रही होती तो आप तक ये ड्रग माफिया पकड़ी क्यों नहीं गए? अब बैठिए, आपको बोलने का मौका दिया गया था, अभी सत्ता की बारी है। और जहाँ तक बात है ड्रग माफिया की, इन्हें पकड़वाना उतना भी आसान नहीं जितना आप समझते हैं। परंतु हमारी सरकार इन ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रही है। इसके तहत कई एक्ट जारी किए गए हैं, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसके तहत नशीली दवा का सेवन या साइकोट्रोपिक दवा के सेवन से रोकने के लिए सरकार हमारी कई चीजों पे अमल कर रही है। धन्यवाद। मिस्टर प्रकाश दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास नशीली पदार्थ आसानी से उपलब्ध है, जो कि स्कूली छात्रों में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय स्कूली छात्रों में नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। मिस सुहाना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि शैक्षणिक संस्थान एवं स्कूली क्षेत्र में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा पोस्पा एक्ट 2020 में जारी किया गया था। इसके अलावा हमारी सरकार का लक्ष्य 2037 तक मादक पदार्थ मुक्त बनाना है। धन्यवाद। Now it's the time for the legislative business. Honorable Electronics and IT Minister to introduce the bill. Honorable Speaker, Madam, I beg to move from leave to introduce a bill further to amend the Digital Personal Data Protection Bill 2023. The question is that leave is to be granted to introduce a bill further to amend the Digital Personal Data Bill 2023. Those who are in favor, please say aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Bill is granted and leave is done. Minister of Education and IT Minister. Honorable Speaker, Madam, I introduce the bill. Now, the House will take up the consideration of Government of National Capital Territory Delhi Amendment Bill 2023. Honorable Home Minister Ms. Atufa to introduce the bill.
I have great pleasure and privilege to take contribution on the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. This will be milestone and new chapter in the history of administration of National Capital Delhi, Bharat. The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 gives the central government over the appointment, transfer and posting of all officials in Delhi government. Now, I would like to highlight the major features Delhi Service Bill 2023. The bill establishes the National Capital Civil Service Authority, which consists of the Chief Minister, Chief Secretary of Delhi, Principal Home Secretary of Delhi. The authority will make recommendation to the LG regarding transfer and posting of all official and disciplinary matters. It authorizes department secretaries to bring to the notice of the LG, the Chief Minister and the Chief Secretary any matter that may bring Delhi government into controversy with the central government. Madam Speaker, there are 4 clauses and I have already provide a copy of to all honorable members of the parliament. Now I would like to take the bill. Motion moved. The Government of National Capital Territory, Delhi Amendment Bill 2023 is taken into consideration. Mr. Shrikant, Member of Opposition. Honorable Speaker, Madam, I am opposing this bill because it breaks the basic structure of doctrine by crushing the federalism, which is soul of Indian democracy. In federalism, power is divided between state and central government, but this bill has centralized all power in the hand of central government. Our constitution has given very importance to regional aspirations that can only be represented by state government, not by centralized union government. The bill has granted lieutenant governors to decrease in various matters that implies that Chief Minister is now unable to convey a session needed for essential government business. Now the question arises, if all the power are transferred lieutenant governor, then what's the meaning of election government? What is the value of Chief Minister and Ministers? Will it not be disrespect of votes given by the public? So it's my request that voting right of public should be respected and this bill should not be passed. Thank you. Okay. सुश्री पल्लवी, सदस्य विपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली संशोधक विधेयक के विरोध में खड़ी हूँ। यह विधेयक सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को कमजोर करता है। यह विधेयक अधिकार और जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला को खत्म करता है। जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला क्या होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही विधायिका को और ये विधायकों की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही को हटा देते हैं तो जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला टूट जाएगी। अध्यादेश की उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति और तबादला की शक्ति देता है। अध्यादेश की विवादों पर धारा 3 में कहा गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 2 की प्रविष्टि 4.1 के तहत दिल्ली विधानसभा पर सेवा व नियंत्रण नहीं होगा। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार देते हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम प्राधिकारी बनाते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या ये बिल अराजकता को जन्म नहीं देता? मैं यह जानना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्या होगी तो वह किसके पास जाएगा? उस सरकार के पास जिसे जनता ने अपने धन्यवाद महोदय। बोलने दीजिए, उनकी बारी है अभी, आपको भी मौका दिया जाएगा। या उस उपराज्यपाल के पास जिस तक पहुंचना उनके लिए लगभग असंभव है। यह बिल चुनी सरकार की सारी शक्तियों को उपराज्यपाल को देती है। अतः मैं कहना चाहूंगी इस बिल को प्रविष्टि नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। सुश्री अमीषा, सदस्य सत्ता पक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हूँ। केवल और केवल सुचारू रूप से भ्रष्टाचार आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको बोलने का मौका दे दिया गया था। अब सत्ता पक्ष की बारी है। विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध केवल भ्रष्टाचार को छिपा लिए कर रहे हैं। मैं विपक्ष से आग्रह करती
करती हूँ कि वह अपना स्वार्थ छोड़कर दिल्ली वासियों के भलाई के बारे में भी सोचे। इस विधेयक में कई ऐसे भी मामले हैं जो सरकार को नियमों में बांधते हैं ताकि दिल्ली प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके। मैं विपक्ष से जानना चाहती हूँ कि कौन से राज्य और राज्य सरकार की पावर की बात कर रहे हैं। महोदय, मैं विपक्ष की जानकारी के लिए उन्हें बता देना चाहती हूँ कि यह बिल दिल्ली पर लागू किया जाएगा और दिल्ली तो कोई राज्य ही नहीं है। यह तो सन 1956 से लेकर अब तक एक केंद्र शासित प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सुश्री मुस्कान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज देश भर में दिल्ली अध्यादेश बिल पर व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, इस बिल का रिव्यू कर रहे हैं और यह एक हेल्दी डिबेट का विषय बन चुका है। महोदय, यह बिल हमारे प्रिय राजधानी नगर में प्रशासनिक संरचना को सुधारने के महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम इस बिल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि इस बिल का संयुक्त लक्ष्य क्या है। इस बिल का संयुक्त लक्ष्य प्रभारी प्रशासन, बेहतर सामान्य और सुधारित विकास को सुनिश्चित करना है। हमारी नीयत में है बस देश का विकास, हमारी नीयत में है बस देश का विकास, हर कोने में पहुंचे प्रगति का प्रकाश। सत्ता सेवा है, अहंकार नहीं। सत्ता सेवा है, अहंकार नहीं। जनता का साथ ही असली राह सही। यह विपक्ष दल हम पे सवाल ना उठाए तो उत्तम होगा, क्योंकि हमें सत्ता में लाने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ जनता का था और जनता हमारी सरकार से अत्यधिक प्रसन्न है। और विपक्ष दल को मैं यह बता दूं कि यह बिल फेडरलिज्म के सिद्धांतों को कमजोर नहीं करता और न ही दिल्ली सरकार के अधिकारों में दखल देने का उद्देश्य रखता है। विपरीत यह एक संतुलित ढांचा स्थापित करता है जो समय समय पर दिल्ली जैसे गतिमान शहर की सामर्थ्य चुनौतियों का समाधान कर सके। महोदय, इस बिल को सुनिश्चित बहसों के बाद और मस्तिष्क मिलाप के बाद तैयार किया गया है, जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार का सशक्तिकरण करेगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति देने के अवसर प्रदान करेगा। मैं यह बता दूं कि यह बिल जवाबदेही, पारदर्शिता और समान विकास के सिद्धांतों का पालन करता है और इस बिल का समर्थन करके हम न ही दिल्ली की प्रशासन को समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि हम अपने देश को फेडरलिज्म की एक नई दिशा दिला रहे हैं। धन्यवाद। गृह मंत्री जी, सुश्री अतुका। यहाँ न शासन हमारा है और न तुम्हारा है, हम दोनों के ही वजूद को जनता ने संवारा है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, यही मकसद हमारा है। अब कुछ कर्तव्य तुम्हारा होगा तो कुछ कर्तव्य हमारा है। सभापति महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी सांसदों को मैं बताना चाहूंगी कि भारत की लोकतांत्रिकता की व्यवस्था पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे और भी सुचारू रूप से चलाने में यह भी हमारी मदद करता है। दिल्ली न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि साथ ही साथ भारत की राजधानी भी है और किंतु यह भी दिल्ली सरकार, दिल्ली का प्रशासन न केवल दिल्ली को ही है बल्कि पूरे भारत की लोकतांत्रिकता को प्रभावित करता है, किंतु यह भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का केंद्र बिंदु बन गया है। विपक्षी जरा गौर फरमाइएगा, इस बिल को लाने का मूल कारण केंद्र के द्वारा पावर हासिल करना नहीं है बल्कि दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। महोदय, विपक्ष की जानकारी के लिए बता दूं, इन विपक्ष को न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है, न समाज की चिंता है, न संविधान की चिंता है। इन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है। यह बिल संसद से लोकतंत्र के सिद्धांतों और शक्तियों के वैधानिक पृथक्करण का उल्लंघन नहीं करता बल्कि शक्तियों को वितरण में स्पष्टता लाने का कार्य करता है। अतः मैं सभी सम्मानित सभासदों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस बिल को पारित करने में अपना मत एवं सहयोग दें। अंत में इस बिल को भव्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में परिकल्पना न करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा और होगा तो सिर्फ वक्त आया है, हिंदुस्तान का नया दौर आएगा, नया दौर आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 में प्रधानमंत्री जी ने
ये दिल्ली वासियों से वादा किया था कि वो इन्हें वोट दें, प्रधानमंत्री बनाया और बदले में वो दिल्ली वासियों को पूर्ण राज्य का अधिकार देंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि दिल्ली वासियों ने तो अपना वादा निभाया, इन्हें वोट दिया, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया, और बदले में इन्होंने दिल्ली वासियों के पीठ में छुरा था। महोदया, ये जो बिल सरकार पास करवाना चाहती है, जो कि शायद करवा भी देगी क्योंकि बहुमत तो आपकी इनकी ही है, पर मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर बनाता है और बस इतना ही नहीं, ये दिल्ली वासियों के वोट की कीमत को भी गिराता है। आखिर आप ही बताइए, दिल्ली वासी वोट देंगे, उनकी सरकार बनेगी, पर उनकी सरकार ही उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उस सरकार के पास शक्ति नहीं होगी। भले ही सरकार माने ना माने, पर सच तो यही है कि सरकार अब ताकत की भूखी हो चुकी है और ताकत की भूख में सरकार अंधी भी हो चुकी है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्य ही कह रहा हूं। आप कृपया शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। सच तो यह है महोदया कि इतना कुछ करने के बाद भी सत्ता पर बैठी सरकार ये चाहती है कि विपक्ष उनके खिलाफ कुछ बोले ही ना। विपक्ष शांत रहे, ये जो करे विपक्ष बस देखता रहे, अपने मुंह पे उंगली रखते। मतलब वाह। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा महोदया कि ये जिस दौर की बात कर रही थी सरकार अभी कि दूसरों का तो सिर्फ वक्त है, भारत का नया दौर आएगा, मैं बता देना चाहता हूं सरकार को कि भारत का नया दौर ऐसे तो कभी भी नहीं आएगा। और आएगा कैसे, जब ये काम ही नहीं करेंगे। भारत के उस दौर को लाने के लिए सही से काम करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से सरकार अपना समय व्यर्थ कर देती है इन शायरियों को बनाने में, अगर उसका आधा समय भी इन्होंने सही काम करने में लगा दिया होता तो सच तो यह है कि अभी तक भारत का वो दौर आ भी चुका। Now, the question is that Government of National Capital Territory of Delhi Bill 2023 is taken into consideration. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now, clause by clause consideration. The question is that the clause 2 to 4 stands the part of the bill. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 2 to 4 stands the part of the bill. Now the question is, the clause 1 enacted formula, the title part stands the part of the bill. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Home Minister Ms. Atufa. Madam, I move the bill to be passed. The motion moved, the bill is passed. Those who are in favor, please say aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Bell.